Good afternoon, dear students. Today in SST you will study chapter 4, Temperature Zones of the World. Now you can see the animated picture. Now here, see Priya, and this year I have been to different parts of India. Now what the Priya is saying, that she had gone to different parts of India. In June, she went to Uttar Pradesh. There the weather was very hot. During summer, this place remains hot, and during winter, it remains cold. Then she went to Mumbai in August. There it rained a lot all through that time. She stayed there. The weather was cool as this place is close to the sea. Now the weather of this place remains cool. Why? Because this place is near the sea. Now in December she went to Manali, where it was very cold, because she went to Manali and there it was very cold because Manali is located at a high altitude. High altitude means at a high height. Now see flow chart, factors affecting climate and temperature zones. First you see which are the factors that affecting the climate. First one, distance from the equator, altitude, direction of winds, temperature and rainfall, and distance from the sea. And you see temperature zones also torrid zone, temperate zone, and present zone. Now you will understand in detail. Now first you see factors affecting the climate of a place. Which are the factors that are affecting the climate of a place? Now see, climate is the average weather condition of a place over a long period of time over a large area. While the weather changes from day to day, climate remains the same year after year. Climate also affects our way of life. The climate of any place on earth is influenced by the following factors. Now you see the difference between the climate and the weather. Now see, climate of a place remains for a long period of time over a large area, while the weather changes from day to day. Now climate also affects our way of life. How the climate affects the way of life means in summers we wear cotton clothes and in winter we wear woolen clothes. In this way the climate affects the way of life also. The climate of any place on earth is influenced by the following factors. Now see the factors which influence the place on earth. First one is distance of a place from the equator, means how much distance is from the equator. The rays of the sun fall almost directly on the equator. Now you can see in the diagram the rays of the sun that directly falls on the equator. Now what is it? Which is equator in this diagram? You can see the red line, that is equator. Now here the rays of the sun directly falls and become more slanted as we move away from the equator towards the poles. And when we move towards the poles, either that is North Pole or the South Pole, the rays of the sun receive in a slanting way. In other words, the amount of sunlight received differs on different latitudes. Means you can see the latitudes also. In different latitudes, it receives in a different way. The places on the equator or near it receives the maximum sunlight. Now, places which are near the equator that receives the maximum sunlight, so these places are hot. The regions away from the equator and that places which are away from the equator means which are near the poles receive slanting rays. जो places equator के पास होती हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर होती हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है. In these regions the heat spreads over a larger area. मीन्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, हम पोल्स की तरफ पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो हीट जो है वो स्प्रेड होती जाती है लार्जर एरिया में, मेकिंग दीज प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर लेस हॉट. तो ये प्लेसेस जो इक्वेटर से दूर होते हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है. एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस
Now see the height of a place. Altitude means height of a place. The height of a place above sea level means sea level के ऊपर देखा जाता है कि कितना ऊपर है सी लेवल से. ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, वो भी हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है. द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स. जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ का एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा. एरियाज लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो एरियाज जितनी ऊंची जगह पे होते हैं तो एक्सपीरियंस अ कोल्डर क्लाइमेट, वो उतने ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे हिल स्टेशन जो हैं वो समर में ठंडे क्यों होते हैं. डायरेक्शंस ऑफ विंड्स. अब विंड की डायरेक्शन, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन मेक अ प्लेस कूल. और अगर विंड्स जो हैं वो किसी कोल्ड रीजन से आती हैं, किसी ठंडे इलाके से आती हैं, तो वो दूसरी हमारी प्लेस को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे. मीन्स अगर हवाएं जो हैं वो किसी ठंडे इलाके से आती हैं तो हमारी जगह को वो क्या कर देंगी, ठंडा कर देंगी. इन द सेम वे विंड्स कमिंग इन फ्रॉम हॉट रीजन्स और सच एज डेजर्ट. और अगर हवाएं जो हैं वो किसी गर्म इलाके से आती हैं जैसे कि डेजर्ट से, तो वो हमारी प्लेस को क्या कर देंगे, हॉट कर देंगे. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी कॉज ह्यूमिडिटी एंड मेक अ प्लेस ह्यूमिड. और विंड अगर वो समुद्र के ऊपर से आती है, फ्रॉम सी की साइड से आती है, कॉज ह्यूमिडिटी. अगर वो सी की ह्यूमिडिटी क्या होता है, दैट वाटर वेपर इन द एयर एंड मेक अ प्लेस ह्यूमिड. और इससे वो क्या करेंगे, प्लेस को ह्यूमिड बना देंगे. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, the level of humidity in the air and the amount of rainfall it receives also determine the climate of a place. मीन्स किसी प्लेस का अगर जो क्लाइमेट होता है वो इन तीन चीज़ों से के ऊपर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. नाउ सी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी. अब आपको ये देखना है कि समुद्र से प्लेस जो है वो कितनी दूर है. प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. जो प्लेसेस समुद्र के पास हैं उनका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हाई नॉट टू लो टेम्परेचर. मीन्स ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है. दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्ड कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड. ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो लैंड के कंपैरिजन में कम गर्म और कम ठंडा होता है. मीन्स दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्ड. वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्ड कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड. मीन्स लैंड से वाटर जो है, लैंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो वाटर जो है वो गर्म भी कम होता है और ठंडा भी कम होता है. हीटेड एंड कूल्ड कंपेरेटिवली स्लोअर देन लैंड. लैंड से स्लो होता है, ठंडा भी और गर्म. व्हेन वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस. और जब गर्म हवा लैंड के ऊपर चलती है, इट इज रिप्लेस्ड बाय कूल एयर और फ्रॉम द सी. और समुद्र से आने वाली हवा जो होती है वो उसको कूल एयर में चेंज कर देती है. लैंड एंड सी ब्रीजेस आर कॉज्ड बाय द डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. लैंड और सी ब्रीजेस जो होती हैं, ब्रीजेस ऑल्सो मीन्स एयर, लैंड एंड सी ब्रीजेस, ये दोनों हवाएं जो हैं आर कॉज्ड बाय द डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर. ये भी डेली जो चेंज होता है टेम्परेचर में या प्रेशर में, इसकी वजह से होती हैं बिटवीन लैंड एंड वाटर. सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड. जो सी ब्रीज होती है वो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम. ऑन द अदर हैंड लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट. और जो लैंड ब्रीज होती है वो ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है रात को. द लैंड एंड सी ब्रीजेस हेल्प इन कीपिंग द क्लाइमेट मॉडरेट. इस तरह से लैंड और सी ब्रीज होती हैं वो क्लाइमेट को मॉडरेट करने में हेल्प करती हैं. मॉडरेट मीन्स नाइदर इट इज too hot nor it is too cold. Places far from the sea have an extreme climate. और जो places समुद्र से दूर होती हैं वो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है. एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म
गर्मियों में गर्म और बहुत ज़्यादा सर्दियों में ठंडा। थैंक यू।